अगर इसी राग पे कोई फिल्म का गाना हो तो आपको समझ में आने लगता है। पुराने तो बहुत गाने हैं, मैं नया एक गाना बताता हूँ जो कि इस राग पे है। राग का नाम तो शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे। कोई जौनपुरी स्वदेश एक फिल्म आया था, उसमें एक भजन था, पल पल है भारी, लता मंगेशकर ने गाया था। अब मैं गा तो नहीं सकता। तो पल पल है भारी, है ना, जुल्म तन से, इसी राग पे बेस्ड था। तो आप लोग जब कभी भी कहते हैं क्लासिकल समझ में नहीं आता है, समझने की जरूरत नहीं है, उसको रिलिश करिए। हर चीज समझने के लिए नहीं होता है। अब पंडित जी और आप लोग आपस में बात करिए, मैं इतना ही बोलूँ। ये जो हमारे इधर ऊपर बैठे हैं, इज एमकॉम एंड बीकॉम प्लस मास्टर ऑफ म्यूजिक, ऑल देयर हाईली ग्रेजुएटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल एंड दे वेल स्टडीड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से निकाल दीजिए ये संगीत के लिए, संगीत के सो संगीत 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 24 आवर्स nobody can do, not necessary. Do your duties, studies, and music is the different. It is not only this thing, the food for the mind and heart. And you tell me where music is not there. आप जब छोटे बच्चे थे माँ के गोद में और पैदा होने के बाद छोटे छोटे बच्चे, मम्मी used to sing the songs where he used to get sleep. Unless mummy sings particular song, the child will not sleep. Means क्या है? Everywhere it is music is there when somebody is born and somebody is dead also. Without music, no function at all. हमको मालूम नहीं, because we are going away from our tradition, and you sit and talk to the grandmother. Grandmother will be a better person more than mother, because mother is busy going to office. But grandmother will tell you all the Ayurvedic medicine, singing, for every, even during the harvesting, there is songs. In the fields, the people harvest the crop, people used to sing. Music makes your life very simple and moving. Music is a wheels for our whole life. If the wheels are not there, can you lift the suitcase about 25 kg? Because of the wheel, it will go easily. So music is there in every part of life. Whether you are an engineer, a doctor, or any subject. So education will never, or music never comes in the way of education. You study well, music is for mind. So I need not tell that you go and ask your grandmother, they know so many songs they used to sing. So today, you don't get afraid that kya classical, non-classical, light music, folk music, ठुमरी, टप्पा, and Bollywood music. सब में you should understand there is a music. Whether it is a Bollywood or whether it's a folk music. What is folk music? A classical music का माता पिता है folk music. Classical music is born to folk music only. How the ragas? Now I sang, Ministry told this is Jaunpuri. What Puri? Puri Bhaji? Jaunpuri, जीवन का पूरी भाजी ऐसा हो जाता है। ये नाम है। ये जौनपुर में कोई राग, अच्छे जौनपुर एक प्लेस है, उससे कोई राज महाराज या कोई आर्टिस्ट मैटर क्रिएटेड दिस राग का नाम जौनपुर है। So whether it's a folk music or a light music, bhajan, everywhere राग रागिनी का वो उधर उपयोग होता है। For example, he sang मधुबन में राज का नाच, everybody knows मदन मुदारन भय, nobody knows. मधुबन में राज का मालूम है, वही हमारा क्लासिकल का धुन लेके बॉलीवुड में डाला है। Because earlier all musicians they were artists. Some used to play violin, flute, tabla, mridangam. So all the music directors जो जमाने में थे 19 up to 1980 can go. They were पक्का artists. So all the songs are based on the classical rag.
तेरे सुनो मेरे, ये राग भी याद है। गामा प गामा 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 प नि गा नि प मा नि गा प, राग भी याद है। ये राग के ढूंढ लेके उसको बॉलीवुड में फिल्म म्यूजिक में डाला है। If you listen to all those songs, earlier songs, till today, even young guys will like those things. Exactly. दिमाग में है। Like Yaman पे अरे यमन तो hundreds of songs. जो का नाम का अल्लाह जब दीप जले आना। अल्लाह अभी लेटेस्ट में हरिहरन का वो है हैरत आशिकी। This is Yaman. See, they have exploited राग यमन. Even classical singers find out, अरे इनको एक पेस, इनको फ्रेज कैसा मिला. So these Shankar Jaikishan, one of the best music director. If you go to his this thing, you find the ragas. सब राग means what is the राग? राग का इतना बड़ा, you need not worry, don't get afraid of राग क्या होता है राग, कुछ भी नहीं. जो फोक म्यूजिक का जो ट्यून्स है उसको ऑर्गेनाइज करके एक 3-4 रूल्स लगा के यही से ऐसा जाओ, ऐसा आओ, ऐसा करो, एक जो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन रहेगा वही क्लासिकल म्यूजिक. लाइट म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक में जो सुनने के लिए क्या अच्छा है वो उपयोग करते हैं. क्लासिकल म्यूजिक में रिस्ट्रिक्शन है. दिस इज योर एरिया ऑफ ऑपरेशन. You can be here only. You need not go out of it, and you create something. So I used to tell normally, whenever you have got paucity of time, paucity of funds, paucity of everything, you start creating because it's not available in a huge quantity. So the music is there everywhere. You know, if you take the Devi Devata, what Krishna ji used to tell, he used to play Sarod. What Krishna used to play? Sarod? Sarangi? So why Krishna always, whenever the Bansuri is taken, Krishna का voice आ जाता है. स्वतः सरस्वती के माता के पास जो है कौन सा है? वीणा. देवी देवता, all music is there in everywhere. और इस ब्रह्मांड में लय है, सुर है, ताल है. Only you have to find it out where it is. So वो कृष्णा का ये हो गया, सरस्वती का, and स्वतः ईश्वर, कांडम नृत्य, great dancer. Whenever he used to get the mood, he used to dance hours together. So देवी देवता को भी ये नया. Why we are going out? You go and ask your parents, your grandmother, father, where music is not there. उनको we don't know because वो संस्कार नहीं मिला, इसलिए हमको we just said I don't like classical. What you don't like? Somebody other day was asking, Guruji, what is the difference between Carnatic music and Hindustani music? You know there are two big systems in India. One is Hindustani, one is Carnatic. Not Karnataka means Carnatic. CAR, not KR. Carnatic, Dakshinat Sangeet and Uttara Sangeet. So, the classical music of Hindustani, classical music of Carnatic, big, there are two MS, like, because nothing is small. Every music is, Hindustani, Carnatic, they are very high level. So, people ask him, what is the difference? I tell him, do you know Hindustani? No, sir, I have not heard Hindustani. Okay, do you know Carnatic music? वो भी मालूम नहीं. Why want difference? When you do not know either Hindustani and Carnatic, he is only wanted to know difference. Means unnecessary we use our brain where it is not required. As Manish told, you need not worry about rag, which rag. I will tell you. Pagalag Bhagavan Bhagavan
गोचन भगवान ये राग है, आपको बोर नहीं हो सकता। But just you listen to आंख बंद करके सुनो, और ट्यून जो होता है वही राग है। राग के बारे में इतना घबराने की जरूरत नहीं। You need not analyze राग में some rules are there। पर्टिकुलर राग में पर्टिकुलर सुर इम्पोर्टेंट है, उसको वादी बोलते हैं। वादी सुर मीन्स इम्पोर्टेंट। समवादी लेस इम्पोर्टेंट। अनुवादी फ्रेंडली नोट, विवादी अपोजिट नोट। Even negative role one sur is created. And aroha means going up, avaroha is coming down. So aroha, avaroha, वादी, समवादी, अनुवादी ये राग का अंग है। एक कान है, आंख है। ये राग का how we are not having all the organ, even rag has got. You try to understand. So you from today onward you listen to just music. Don't worry about the ragini. You want to speak something? No, I just wanted to tell them कि ये राग इस मौसम का है। हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ये इसमें जो राग है वो टाइम स्पेसिफिक और सीजन स्पेसिफिक भी है। Yeah. अब इस ट्यून को सुन के कुछ ध्यान आ रहा था। इस राग का नाम जरूर सुना होगा। कौन सा राग है? हो सकता है अभी नहीं बता पाओ, बट इसका नाम जरूर सुना होगा। हाँ, बिकॉज फिल्म का नाम है बसंत बहार, ये सब सुना होगा। बसंत वो राग है। तो इसमें लोग एक राग बसंत है, एक राग बहार है, स्टार्ट दोनों मिक्स किया मैंने, एंड हुआ बहार से, वो मिला के बसंत बहार बन गया। तो अगर ध्यान से कभी क्या लगे गुलाब जाब चंपक बन भूले गगन भूले गगन भूले ये रफीक आप गाए तो, आप किशोर कुमार गाए तो, और एनी अदर आपको एकदम पता चलता है। ये पिछले जमाने का है, पंडित भीमसेन जोशी एंड पलुस्कर मन्ना डे जी गाया है। सो नाउ यू here afterwards you go try to attend music concert whether you understand or not। राग संगीत बोलते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इस शास्त्रीय संगीत की
is born to folk music. Folk music of a lot of I think Speak Media has organized folk music or concert. Anybody has participated in this college only? Can anybody can sing for 5 minutes for folk music? I don't know. Means I have forgotten my parents and classical music as a parents. आपको मालूम है? Can anybody sing एक दो लाइन? folk music क्या होता है? आपको सुर को मैं मिलाता हूँ तानपुरा. आपका जो सुर है. Anybody can come forward. What did you learn from the folk music session or whatever workshop? Anybody? Don't hesitate. आराम से. तुम लोग में से ऐसा कोई छात्र है जो कि कोई फाग का गीत या कोई होली का गीत या कोई anything. हाँ या कोई कजरी किसी को आता हो या कोई टुकड़ी आता हो किसी को. अच्छा उदार सर गाएंगे. Please. सर आई एम नॉट अ सिंगर और राग का इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ गाने सुने हैं और उसमें से एक इनका भी काफी फेवरेट है, तो मैं थोड़ा सा 2 लाइन आपके सामने उपस्थापित करूं. हो सकता है राग में बिल्कुल सही नहीं हो, लेकिन मैं बताता हूं. मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बल मो सुन कैल बल मोरे सुन कैल बल मो. यही मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया. यही मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया. पिया चल गईले रंगून हो कचौड़ी गली सुन साहब को राग को मालूम न होगा, लेकिन ट्यून वही है. वो ट्यून से क्लासिकल म्यूजिक बन गया. You take any rag, it has the original some tunes आते हैं. So folk music is the foundation for the classical music. So now you are going to promotion from folk to classical because it's the first time happening, and Agarwal ji and took interest all for your sake. He is a music lover, and he suddenly within few hours the program is fixed. You are all lucky. You must be grateful to Speak Media, Manish Singh ji as well as Agarwal ji. And I'm going to end also to with a khori in Rag Bhairavi at the end. Now you ask question. Any question, any stupid question, any good question, anything. Sir, Anything. Sir, before you end, one request for one rag, one song of Ud Jayega Hans Akela. We would like to listen to that live. We have never heard it live. What is Ud Jayega Hans Akela. Jagdarshan का मिलन. कौन सा राग में है? राग बात करते हैं. गुलाब का No, I don't sing. I don't know. Yeah, I don't know. आपको कितना राग चाहिए उतना राग गा सकता हूँ 10-25 minutes. If you know any rag, you tell me. I will try to sing. Or you want to ask anything about music, classical history, geography of classical music. In Hindustani classical music, whose नाम आपको जानते हैं? आप जानते हैं? Anybody? Classical music में any name you remember? Any artist name? Any artist name?
बाय मिस्टेक ऑल्सो आपके कान पर पड़ा होगा। कौन सा है? एनी नेम? बिरजू महाराज, वाह, ग्रेट डांसर, कथक डांसर, वेरी गुड। एंड एनी वोकलिस्ट? मोहम्मद रफी? बिस्मिल्लाह खान सिर्फ सहनाई पढ़ते हैं, वोकल में नहीं। Oh, instrument Shana. At least they know that Shana is okay, Ustad. And any vocalist? Who is Ravi Shankar ji? Who is Ravi Shankar ji? The greatest musician, sitarist of the world class artist. You should know all these things. Unfortunately, वो syllabus में नहीं। Earlier, when we were learning, all these people, great stalwarts, story or katha was in the syllabus, in the book actually. So Ravi Shankar ji, the greatest sitarya. And any vocalist, male vocalist, female, any male vocalist? वर्षनी देवी, सितारा देवी, Vijaya Devi, बड़े गुलाम अली खान, Pandit Bhimsen Joshi ji, we have Bharat. You know how many? He is a Bharat Ratna. We must know his name. How we can forget? सर पंडित भीमसेन जोशी के शिष्य रहे हैं, और पंडित भीमसेन जोशी के भजनों को तुम लोगों ने सुना होगा, और नहीं तो कम से कम जो एक वो गीत था मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो तुम लोगों ने सुना होगा। Yeah, people like Ravi Shankar and Pandit Bhimsen ji, you should know, because they are Bharat Ratna, not Patna Ratna or Bengaluru Ratna or Karnataka Ratna. Bharat Ratna. रविशंकर जी को तो पूरे विश्व में क्लासिकल म्यूजिक को फैलाने का उन्होंने पाश्चात्य म्यूजिक के साथ उसको जोड़ दिया। एडिसन और उनका मिलकर के जो दोनों का जोड़ी बना था। Pandit Bhimsen, Pandit Ravi Shankar ji took Indian music to foreign and did a lot of fusion programs. And after Ravi Shankar ji visiting abroad, many foreigners started learning Indian music. They used to come to India and learn music. So these people, especially Pandit Bhimsen Joshi, Ravi Shankar, Allah Khan or Vilayat Khan Sahib, they made the Indian music so popular in abroad. And there, you know that in abroad, in different places, big music schools are there where Indian music is taught. One day you may travel to abroad after your education or higher education. Indian music क्या हुआ फॉरेन में आपको पता चलेगा, इतना इम्पोर्टेंट है। सो क्लासिकल म्यूजिक का जो ऐसा प्रोग्राम होता है, यू शुड लिसन टू देम, यू शुड रिमेंबर देयर नेम, and you cannot forget such a great Rabindranath Tagore ji, Vivekanand ji. How you remember? Like that, Pandit Bhimsen Joshi ji or Ravi Shankar ji, Vilayat Khan. So if you listen to if you know their name, by chance you may listen to your social media. So what you want to talk to me, which subject, what you want? Ask some question, because it is not a classroom. We are sitting just to get together, you can ask anything. He asked you to maintain silence, but not for this. You have to talk. Tell me what any questions? Tell me, please. हाँ? का नाम बता रहा है सिकंदर चौहान। हाँ, प्लीज बोलिए। आप थोड़ा आगे आए ना, आगे आइए। Give him the mic, because you let others listen to your question. हेलो सर, अभी आपने सर क्लासिकल म्यूजिशियन के बारे में सर पूछा सर, तो हम लोग में से बहुत कम स्टूडेंट सर हम लोग जवाब दे पाए सर। तो हम जानना ये चाहते हैं सर कि ऐसा क्या हुआ सर हिस्ट्री में क्लासिकल म्यूजिक के साथ कि सर इसका मतलब बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं सर। बॉलीवुड से सॉन्ग होते हैं उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक हो गया सर, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं सर।
देखिए, म्यूजिक में दो पार्ट है, वन इज परफॉर्मिंग, लर्निंग, अनदर इज लिसनिंग. Unless you listen to classical music, you don't feel to learn at all. Because you should know what you want. You can't learn just music like that, some music class is there. But something should be brought from the previous generation. ये संस्कार जो बोलते हैं ना, संस्कार होना चाहिए. In earlier days, every function, whether it is a thread ceremony or marriage ceremony, everywhere some music, even South में, every marriage has got a music session, a reception. Why that? Without music, without वो सुर का, लय का, स्वर का, वो संगीत का जो वातावरण नहीं है, वो अपवित्र रहता है. वो वातावरण पवित्र करने के लिए संगीत होना चाहिए. And in this different gurus are there, different घरानास are there. What is घराना? एक गायकी, एक इंडिविजुअल गायकी है. भीमसेन जोशी जी का एक घराना है, रविशंकर जी के घराना. घराना मीन्स स्टाइल ऑफ सिंगिंग. इट इज नॉट अ बिग दिस, इट इज अ फैमिली. Under one shelter, some music is going on, and the style is called घराना. You are asking something. यस सर. हमारे सोसाइटी में सर जो क्लासिकल म्यूजिक होता है सर, जैसे आप फंक्शन बोले वो होता है सर, लेकिन हम लोग के यहाँ सर क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता सर. जैसे भोजपुरी गाने हो गए सर, या फिर बॉलीवुड के गाने हो गए, वैसे बस सर गाने बजते हैं. बिहार में एक से एक प्रसिद्ध और बहुत ही सिद्ध शास्त्रीय संगीत के सिंगर हुए हैं. ध्रुपद गायन में पूरे विश्व में बिहार का राम चतुर मल्लिक का उनका गाना है. उनका नाम है. तो ऐसा नहीं है, बिहार की भूमि जो है वो बहुत ही समृद्ध भूमि रही है शास्त्रीय संगीत की. बहुत एजुकेशन एंड म्यूजिक कला, पटना इज, बिहार इज बहुत समृद्ध रहा है. Only thing is, you might have not come across the classical music. You feel that classical music is going away? यस सर. What we are, I am old. These are all like you only. Ask him how many programs he gives in a month. I have got about 30 students who are performing all over India, abroad. They are BCom, MCom, doctorate, PhDs. All along with the education, they have learned music also, and they are performing artists. Because it's a गुरु शिष्य परंपरा जो है, गुरु के शिष्य, शिष्य गुरु, गुरु शिष्य, वो अभी तक है, वो जिंदा रहेगा. Even heaven falls down, आकाश falls down, हमारा सनातन धर्म और हमारा सनातन संगीत उसको कुछ भी नहीं हो सकता. हमारा जो अभी बोलते हैं वी आर वेरी मॉडर्न दिस थिंग दैट, ये हमारा जो जमाना है ये झोला सर का है. झोला एक बार झोला उधर गया है, वो आने का है, पर इट विल कम बैक. इट विल लाइक दिस और इट इज नॉट लाइक दिस. तो झोला जैसा जस्ट ओके, मॉडर्निटी, इंग्लिश मीडियम, बी फॉर बॉल एंड के फॉर समथिंग, व्हाई नॉट एम फॉर म्यूजिक. वो है तो that is why what Speakmaker is doing. You are all such a brilliant boys and girls here. If you take little time and listen to classical music, हमारा धर्म क्या है, रीत रिवाज क्या है, पेरेंट्स कैसा रहना, it's a discipline of life. Music is another discipline. Music is कला है, विद्या है, I agree, but it's a great discipline. So I am not forcing you to learn music, but at least try to listen to good music. And Agarwal ji knows so many things. He will guide you which artist ko sunna hai. He is a great music lover. And have a friendship with your principal ji. And apart from your school discipline, discuss about music. He will guide you. मैं रविवार के दिन अक्सर बच्चों के संग संगीत शेयर करता हूँ WhatsApp पर. See what he is doing, excellent work. Every Sunday is spending time. So हमारा को म्यूजिक को कुछ भी नहीं हो सकता है. So we may use the electronic media, we may sing classical music on jeans pant and t-shirt. You need not wear jubba and or nothing like that. You can sing classical music on jubba shorts. Nothing happens. Your music is good,
You will attract everything, concentration on your music, not on your dresses. So nothing, it has no any old system, now it is unfit. ऐसा नहीं है. Music is evergreen. It will survive. And if Guru Shishya Parampara, that's why government is thinking every school में music department होना. Whether it's the light music, bhajan, tappa, thumari, classical, right from school to college level, university level. Even Dharwad में post graduation है, post graduation है, और PhD है. Because the people are learning, they come out one day with the best artists. कुछ भी नहीं होता. You ask your parents and grandparents, so they know so many songs. You learn from them. And Bollywood का क्या हो गया है? Because it's a big media, it's a strong media, and people get attracted. But earlier it was okay because their songs were on the classical rock basis. Now it is different. Earlier, you know, in Bollywood they used to use the flute, violin, hundreds of violins, sarangi, sarod, harmonium, pakhavas, and tabla. Now all instruments you will get in one instrument. Synthesizer तो क्या बोलते हैं? Synthesizer वो गलत है. Because all the instrument only one player, only one artist will play. If different instruments are there, different artists will be there. So नुकसान तो है. अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का इतना हमको थोड़ा मैडनेस आ गया. We are not able to. Otherwise, all the concert we used to use the tanpura. What is called? Tanpura. Tanpura, you know, any classical music के पीछे दो tanpura रहता है. Yes. Remember, वो tanpura is the bass note that is reminding you, I am here, I am here, I am here, don't leave me. So जो षडज है, वो tanpura में जो bass sound है, उसके ऊपर राग रागिनी है. इसलिए we use the natural tambura, but I am also using all electronic, but tanpura hai, not more than anything. So use of musical instrument might have been changed, but sound nearby is okay. Anything? Or you are सर अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से सर जैसा सर आपने गाया सर आप लोगों ने गाया सर वैसे हम सर गूगल मीडिया से सर सुने थे बट सर अभी लाइव सुनकर सर इतना सुकून मिला सर कि जो भी yeah, if you go एक्सप्लेन नहीं किया सर थैंक यू सर if you go to YouTube and put Vinayak Tovi, you get classical, Hindi bhajan, Marathi abang, Kannada songs. You get so many things. Now you are all lucky. घर में बैठ के आपको किसी को ऊपर सुन सकते हैं. You try to develop that, and that gives you relaxation of mind. Even if you are doing mathematics, give 15 minutes gap and sing, listen to music, your mathematics will be all right. Mainly thing is it gives the food to the mind and heart and your life. Music is life, and that will give you the correct direction. Tell me. Anything? Anybody else? Only one person asked the question. Ask question. Sir, my name is Saurabh Kumar sir. सर आपसे क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि जैसे आजकल का सोशल मीडिया है वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन है बहुत सारा बॉलीवुड मूवीज है हर एक तरह का मूवी है वहाँ पे क्लासिकल मूवी को ऐसे दिखाया जाता लगता है फन है कितना बोरिंग है तो हम लोग जो होता है उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं ला पाते हैं तो हम लोग का जो जनरेशन है वो यही सोचता क्लासिकल में बोरिंग और किसी से ठहाका मारो बट वो रिस्पेक्ट नहीं आ पाता है सर लेकिन जब सामने सुनते बहुत अच्छा लगता है तो बस एटलीस्ट हम चाहते हैं कुछ ऐसा एडवाइस दिए कि रिस्पेक्ट आए आज की जनरेशन में एटलीस्ट उसमें रिस्पेक्ट हो जिस में सुर है ताल है भाव है लिरिक्स है वो बोर नहीं हो सकता. Only thing is if you are particular go for deep classical you have to join some guru. Otherwise you become a good listener and Bollywood as I told you earlier it was very much depend on the classical music. Now it's a time for fusion. Even घर में अलग अलग खाना बनाते हैं वो फ्यूजन से ही होता है. अलग अलग मिक्स करते हैं हम अलग अलग डाइनिंग वो मेनू कार्ड है ना
मेनू कार्ड में कितना रहता है। तो ऐसा घर में खाना पका जाए, इवन क्लासिकल में भी ऐसा थोड़ा फ्यूजन चल रहा है। एंड यू डू द फ्यूजन बट यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, सोशल मीडिया कितना देखने का उतना देखने का। सोशल मीडिया में नथिंग इज, आई शुड नॉट टेल, सोशल मीडिया में इतना बड़े बड़े लोग कितने बार मरते हैं, बट मरना एक ही बार है ना। इन सोशल मीडिया if you go that Amitabh Bachchan is dead, they should put the photo and put the garland. यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, अरे भगवान उनको अच्छे आरोग्य और लेट हिम फुल लाइफ, बट सोशल मीडिया में he was dead. ऐसा सोशल मीडिया मिसगाइड कर, डोंट बी आफ्टर unnecessarily, don't use your mobile, don't go there and take your elders permission, your principal permission, किधर देखना है, क्या देखना है. It's unfortunate that anybody can, anything you can put to YouTube and say that it is great. Though misguided, though you should be very careful. And नहीं देखना है, नहीं सुनना है. And you have your own discipline. हमको ये सुना, बॉलीवुड को सुनो, फोक सॉन्ग को सुनो, राजस्थानी फोक है और मध्य प्रदेश का है और बिहार का है, वो संगीत है उसमें. एंड डोंट लिसन एनी, डोंट बिलीव और एनीथिंग व्हाटएवर सोशल मीडिया, इट इज देयर बिजनेस, दे विल डू एनीथिंग. थैंक यू सर. एनीथिंग. एक भजन कोई अगर हो इसके बोल ये लोग थोड़ा सा समझ सके. भजन गाएंगे. I will sing the bhajan and on very way. तो item another 10 minutes तो है. आपको कुछ पूछना है तो पूछना, नहीं तो I will start the bhajan. Good afternoon, sir. Yeah. My name is Rohit Kumar from BSc second year. So my question is, when I listen to songs, classical songs or folk songs, I feel mesmerized. But Wow. yes, sir. But after listening, it is over. I am back in this world. वो अच्छा. Yes, sir. देखिए. So is there any tip or help that it can last forever for me? जिसको आप चाहते हैं कि जिस गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, बार बार सुन लीजिए. Every time when you listen, you have a different experience. Yes, sir. It is not only the meaning of the line. तो सुर में इतना ताकत है, सुनती सुर में ताकत है ना. कितना बार आप सुनते हैं ना, अलग अलग भावना उजग. हम वही गाते हैं ना. Since 65 years I am singing same राग यमन भूप बिहार. We never get bored. संगीत में इतना ताकत है, सुर में वो ताकत बहुत बड़ा इसमें. इसलिए आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, and you will have a different. Even my students, I teach them one rag for more than 6 months. One rag. There are thousands of ragas. Yes, sir. And each class में अलग अलग इंटरेक्शन होता है, अलग अलग विचार आ जाता है, अलग अलग हमको because we cannot concentrate 100%. So whenever our concentration is not there, वो skip हो जाता है. When you listen to second time, so we can do that. It also helps us in concentration, sir. हाँ? It also helps in concentration. आपको म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज M only. M is medicine, M is meditation, M is music. और क्या चाहिए? मेडिटेशन भी M है, मेडिटेशन भी है और म्यूजिक भी है. म्यूजिक थेरेपी is very popular now. If you listen certain ragas, you will get relaxed, you will get sleep. Some of my students was telling इसका बेंगलुरु में, गुरुजी whenever I sing this rag, I get sleep. बागेश्वरी करके एक राग है. Whenever I was teaching her बागेश्वरी, अर्चना करके लड़के है, वो बोलते whenever I start practicing बागेश्वरी, I get sleep. I get सो जाए. Again you get up and practice. ऐसा म्यूजिक में बहुत ताकत है. तुम लोग में से ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो कि 10th में इकोनॉमिक्स पढ़े थे? अगर कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, Yes, sir. तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, हिंदी में उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत, जिसमें इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जैसे ही आप किसी चीज का फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड यूनिट लेते हैं
फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है या उसका जो यूजफुलनेस है वो क्या हो जाता है, घटते जाता है। एक रोटी के बाद दूसरी रोटी में आनंद कम आता है, तीसरी रोटी में आनंद और कम आता है, Yeah. चौथी में और कम आता है। तो उसमें एक ही एक्सेप्शन वहां पर दिया जाता है, Only music. दैट इज म्यूजिक। And music and अध्यात्म, नामस्मरण। जब आप म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक को आप बार बार सुनते हैं तो आपको उसमें आनंद बढ़ते जाता है। जब आप किसी अच्छे मतलब किसी कॉम्पोजिशन को, अच्छे म्यूजिक को, अच्छे संगीत को जितनी बार सुनेंगे आपको उसमें उतना अधिक रस मिलेगा। और खराब म्यूजिक जो है आप 2 से 4 बार सुनने के बाद आपको भी उबियत हो जाएगी, लेकिन अच्छे म्यूजिक में आपको हर बार आनंद आएगा, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आनंद आएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। जो तुम बोले ना कि बोरियत इसको और बढ़ते जाता है। जो मेरे आज से 30 साल पहले खरीदे हुए कैसेट हैं उनको मैं आज भी सुनता हूँ और वो आज भी आनंद देते हैं, वही आनंद देते हैं जो मुझे उस वक्त की मेमोरी दिला देते हैं। वो संगीत जुड़ा हुआ है उस पीरियड से जिस पीरियड में मैं सुनता था उसको। वो have you seen any day the gold has become this thing not we are Lost not the value. Yeah, it's like a gold only, it can never fade away. And as Sam told, you sunte rahiye, exception is there for everything, marginal diminishing it is economics hai. Whenever you eat more, whenever you do, you get you're not getting the good return, you start neglecting. But music ऐसा नहीं होता। म्यूजिक में रस है, वो म्यूजिक का ताकत है। म्यूजिक ईश्वर है, संगीत एक ईश्वर का अवतार है। एंड तुलसीदास ने कहा है नाम जपते रहो, नाम तो बंद नहीं करना है। आप सब कुछ करते हैं, नाम लेते हैं। भगवान राम का राम, वो एक बार नहीं 3 बार, हजारों बार आपको नाम ले तो आपको अच्छा ही लगता है, आपको दर्शन मिलता है। थैंक यू सर। एक भजन गाता हूँ और एक गोरी। आलू हंगरी, बहुत हंगरी हो गया। ये राग भी द भजन इज इन द क्लासिकल राग बेस। इसका नाम है जोग। सागा मा पा नि दम, ये आरोह है। सा नि पा मा ग दो गंगा। तो शास्त्रीय संगीत में जो 12 नोट जो है, 22 श्रुति है, 12 सुर है। 12 सुर में रे गा मा धा नी ओ चंचल है, कोमल और तीव्र होता है, और बाकी सब चेंज होता नहीं। सच पंचम कोमल एंड तीव्र, रेगा माधानी चेंज हो जाता। तो टोटल 12 सुर है। ये राग में 2 गांधार है, एक कोमल गांधार और 3 गांधार। ये राग जोग पर आधारित है। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ते हम। क्रोध है, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। Nothing you have left. You have left only one thing.
जपन क्यों छोड़ेगा। आप झूठ नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ा है ये कि वो परमेश्वर का नाम, राम का नाम, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया। झूठे जग में दिल लगता, झूठे दिल लगता, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में, झूठे जग में, झूठे जग में दिल लगता, झूठे जग में दिल लगता, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब समान, कौड़ी को तो खूब संभाल, कौड़ी को तो खूब संभाल, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाल, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया, नाम जपन क्यों नाम जपन क्यों छोड़
सब आध्यात्म में बोलता है आप नथिंग यू आर लेफ्ट यू आर नॉट लेफ्ट एनीथिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स उनको छोड़ा पहले वो नहीं छोड़ा राम का नाम छोड़ दिया ऐसा नहीं करना बाबा ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए सो म्यूजिक इज गॉड अकॉर्डिंग टू मी एंड म्यूजिक का वर्शिप करेंगे आई विल कंक्लूड विथ एक होरी in Bhairavi, and I thank Speakmaker and all the college authorities, especially Agrawal ji, he took interest and कुछ इधर से लेके जाए मेरा विनंती है आज आपने अटेंड किया ना कुछ एक शब्द एक सुर एक इधर से ले जाए otherwise what is fun of my coming here I have come from Bangalore you know so we are not becoming rich guys for performing here. Speakmaker is doing for the youngsters to make the foundation strong, and we are all the artists are supporting Speakmaker. Indirectly, we are supporting you.
take the advantage, benefit of today's session. कुछ लेके जाए अच्छे चीज, अच्छे राग, एक अच्छे धुन. Okay, thank you very much. And this is the last item. You don't worry, hungry I know. Some of the faces are getting free also. Even I am. ये राग भैरवी में है. इसको सिंधु भैरवी कहते हैं कर्नाटक में. कर्नाटक संगीत बोला ना, बहुत राग दोनों सिस्टम में कॉमन है. Some Carnatic people have taken Hindustani raga, Hindustani people have taken Carnatic raga, because music is music है. सब म्यूजिक में सुर, लय, ताल, भाव है. So music is one. Okay? क्या बात है? देखिए कितना अच्छा बजा रहा बजा रहे. फोक म्यूजिक क्लासिकल क्या है, इतना अच्छा बजा रहा है. वही म्यूजिक है बाबा, ये क्लासिकल है, ये फोक है. थैंक यू. खेलते गए गिरधारी मुरारी,
सूरत कैसी बनाई नहीं खेले तो हाथ पकड़ कर नहीं खेले तो हाथ पकड़ कर नहीं खेले तो हाथ पकड़ कर लाज लेके भोले भाई लाज अलग अलग रंग मिक्स होता है नहीं कहने तो हाथ पकड़ कर नहीं कहने तो हाथ पकड़ कर लाज में लाज में छात्र नहीं बैठे रहेंगे अभी और हम लोग एक बार सभी लोग पुनः बैंगलोर से गुरु जी गायक कवि जी हम लोग के बीच आए तो एक बार सब लोग खड़े होकर के तालियों के साथ अभिवादन करें। जोरदार तालियां।
देखो पूरा भारत एक है, और पूरा भारत अगर किसी एक सूत्र से, किसी एक धागे से जुड़ता है तो वो धागा है संगीत का धागा। और अभी मैं छात्रों को लेकर के राजस्थान गया था और वहाँ बच्चों ने राजस्थानी फोक संगीत को बहुत एंजॉय किया। कलबेलिया डांस और वो राजस्थानी जो संगीत, लोक संगीत होता है, और हमारे यहाँ संस्थान में भी अलग अलग प्रांतों से, राजस्थान से फोक संगीत के लोग, छऊ बंगाल से, पुरुलिया से छऊ नृत्य करने वाले लोग, तो ऐसे फोक संगीत के लोग हमेशा आते रहे और क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम के सौदे से हमेशा होता रहा है। तो आज भी एक ऐसा अवसर रहा जब बहुत ही नई जनरेशन जो बिल्कुल बेचैन आत्मा, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, ज्यादातर जो इसमें से जो छात्र हैं ये रेस्टलेस स्वभाव से रेस्टलेस हो चुके हैं। इनका थोड़ा देर भी अगर इनको शांत बैठना हो तो इनका हाथ, मन, मिजाज सब कुछ उड़ा जाता है, और होता है कि कोई मोबाइल खोल ले, उसमें कोई रील देख ले, ऐसे ऐसे अगली बेचैन हो जाती है ना। तो इतनी देर तक इन लोगों ने आपको सुना भी, समझा भी, और थोड़ा इनको आनंद महसूस हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मुझे लगता है कि एक अलग अनुभव है, और ये संगीत हमारा संगीत है, इस मिट्टी का, इस भूमि का संगीत है। और जैसा कि आज गुरु जी कह रहे थे कि चाहे वो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो, दोनों जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, और पूरा भारत जो है वो संगीत के माध्यम से जुड़ता है। तो बेंगलोर से गुरु जी हम लोग के बीच आए हैं पटना में, और पटना की भूमि जो है वो आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और जो आपके संगीत में आपके साथ इसको बोलते हैं साथ संगत। इफ लेफ्ट एंड राइट इज नॉट गुड, कॉन्सर्ट अच्छा नहीं होता। ये सुर से हेल्प करते हैं, ये ताल और लय से हेल्प कर रहे हैं। सो सुर और ताल और तो मिलना होता है। इसको बेस्ट मिक्सचर इज संगीत। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संगीत? गुड मिक्स। सो इधर सुर है, मेरे के पास सुर है, इधर ताल लय है। इट्स अ टीम वर्क। इट इज नॉट ओनली विनायक तोरवी, भरत हेगड़े जी एक्सेलेंट साथ कहे हैं, और योगेश भट्ट, एंड मेरा स्टूडेंट तो है, ही इज लाइक माय शैडो, ही हैज टू बी। इसको शागिर्द बोलते हैं ना। शागिर्द माने क्या है? दो बार इधर गुरु जी का शैडो में रहता है, गुरु जी का जो ज्ञान प्राप्त कर, गुरु बिना ज्ञान उसमें सहर। सो गुरु के ज्ञान पाने के लिए ही शुड बी लाइक ए शैडो। सो गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल पद्धति जो है वो अध्यात्म में भी है। इवन कृष्णा एंड बलरामा एंड सुदामा ज्वाइंट गुरु जी, एंड राम लक्ष्मण ज्वाइंट विश्वामित्र जी। सो सबको गुरुकुल अच्छा है। अब इट वाज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अर्लियर, सो नाउ इट इज डिफरेंट। बट पीपल लाइक अग्रवाल जी, ही इज गाइडिंग यू स्पिरिट है। और हमारा सनातन का धर्म का जो ये है वो डिसिप्लिन है। संगीत आज से कभी कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनते जाओ। आई विल कम एंड अगेन आई विल कम। एक कैसे गुरु जी का नाम, अल्लाह गुरु जी के नाम, अल्लाह गुरु जी आपको। हाँ, इंडिया में और सॉरी in Bombay, Sudhir Naik करके one of the best harmonium player, and he used to accompany all the top class artists of India, including Bharat Ratna Pandit Bhimsen ji, उसका शागिर्द है। He is from North Karnataka, जो अब सिरसी बोलते, मंगलूर, सिरसी, उडुपी, you have heard, और उडुपी रेस्टोरेंट है हमारे। You heard उडुपी नेम, बहुत बड़ा उडुपी का नाम है। जो इंडिया में रेस्टोरेंट जो है पहले से शुरू किया उडुपी लोग है। बॉम्बे उडुपी है, इधर भी होगा उडुपी रेस्टोरेंट है। सो ही कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। एंड माय राइट साइड इज योगेश भट्ट, इज वन ऑफ द ब्रिलियंट तबला प्लेयर, एंड he is undergoing advanced training from Pandit Ravindra Avagal ji, is one of the very best tabla player in South India. He lives in Bangalore, and he has accompanied many top class artists. He has toured abroad, and even we have all three of us have come. You know, we charge very heavily for a concert. It is आपके कान में मैं बता रहा हूँ,
we charge the 2 to 3 lakhs per concert. For this stuff, for this thing, we whatever they give as a dakshina, as expensive, we don't interact with them regarding money. So we are all helping you, and because of you, just to train, just to have the music atmosphere at home or outside. We have come all along from Bangalore. Otherwise, organization cannot afford to invite us unless they pay our charges. We never go. We are joining our hands with Speak Making to help the college students, school students to sanskar बढ़ाने के लिए. Please take something from here, today's concert, today's session. Thank you. देखो, स्पिक मेकिंग की बात गुरुजी ने करी, और तुम लोग में से कई सारे छात्र हैं जिनको स्पिक मेकिंग के बारे में बहुत नहीं पता होगा. स्पिक मेकिंग सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग्स द यूथ. स्पिक मेकिंग फुल फॉर्म समझ में आया? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग्स द यूथ. इसकी फाउंडेशन जो इसकी स्थापना जो हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. प्रोफेसर किरण सेठ छात्र थे आईआईटी दिल्ली में. तुम लोग जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, वो भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे. बहुत ब्राइट स्टूडेंट, बहुत वाइब्रेंट स्टूडेंट, और इंडिया के बहुत ही होनहार छात्र. और फिर उनको यूएस में जॉब मिलती है, और वो यूएस में वहाँ पे वर्क करते हैं. और जब वो यूएस में वर्क कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अवसर मिलता है भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को सुनने का. उनको अमेरिका में एक प्रोग्राम में वो जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है. कहां पर? अमेरिका में. और उस प्रोग्राम में उनके साथ उनके कुछ इंडियन फ्रेंड्स थे, वो लोग भी थे, और उसके अलावा ज़्यादातर वहाँ पर थे जो उनके अमेरिकन दोस्त कह लो, या जो वहाँ के यूएस सिटीजन्स थे. वो लोग उस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे थे. और उनके कई सारे जो इंडियन फ्रेंड्स वहाँ उस कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब उनको उन्होंने बताया था कि भाई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो वो लोग उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुए. लेकिन जब वो वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि भाई जो यूएस के जो लोग हैं, वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को तो बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. तो उनके मन में ये बात आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा म्यूज़िक जो है वो हमारे यहाँ से ही बिखर जाएगा और हमारे लोग जो है उसको अप्रिशिएट करना भूल जाएंगे. हाँ, तो उन्होंने एक संस्था बनाई, स्पिक मेके, और उसमें उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया और उनके दोस्तों को कहा कि आप लोग भी थोड़ा फंडिंग दो. और फिर उस फंडिंग के साथ उन्होंने एक शुरुआत करी. एक व्यक्ति के विचार से, एक व्यक्ति के संकल्प से ये संस्था शुरू हुई. और तुम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हो कि ये स्पिक मेके संस्था जो है, ये किस स्तर पर आज पूरे भारत में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और बड़े बड़े आयोजन करके, छोटे छोटे आयोजन करके युवाओं को योग से, संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, फोक संगीत से, लोक संगीत जो होता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से, उनको अभी कोविड के समय में जब कई सारे ऐसे फोक आर्टिस्ट थे जिनका घर का गुजारा मुश्किल हो गया, उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन संगीत आयोजन किए. और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जबकि इन्होंने फिर नॉमेनक्लेचर बनाया कि जो पद्मश्री, पद्म आवाज से सम्मानित होंगे, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, उन्हीं को ज़्यादा अवसर दिया जाएगा. लेकिन लोक संगीत के मामले में वो कई बार जो पॉपुलर लोक आर्टिस्ट होते हैं उनको भी अवसर देते हैं. तो पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में, भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहाँ पर स्पिक मेके एक्टिवली छात्रों के, और बिहार की जब मैं बात करता हूँ तो बिहार में सिर्फ पटना में नहीं, स्पिक मेके के प्रोग्राम जो हैं वो दरभंगा, छपरा, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, गया, हर जगह, बेगूसराय, सब जगह आयोजित किए जाते हैं. और जैसा सर ने बताया, गुरुजी ने बताया कि इनके ऑब्वियसली जो संगीत है, कला है, इतने वर्षों की साधना के बाद मिली है, तो उसका एक जो पारितोषिक इनको खुद ही देते हैं जो आयोजक होते हैं. लेकिन ये लोग स्पिक मेके से कम शुल्क लेते हैं बहुत, क्योंकि इनकी खुद की एक भावना ये है कि युवा पीढ़ी जो है वो हमारे संगीत से, भारत के संगीत से जुड़े. और उसके बाद स्पिक मेके हमारे जैसे संस्थानों से
बहुत कम, खाली वो जो मनीष जी जो हम लोग से शुल्क लेते हैं वो लेते हैं जो कलाकारों के लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल आना जाना भाड़ा, बाकी बहुत सारा शुल्क जो है वो सब स्पीक मेके सेंट्रल बॉडी जो है वही सारा कुछ अफोर्ड करती है। और ये बहुत मैसिव लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति के संकल्प से ये शुरू हुआ। और मैं अपने छात्र जीवन में, जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 12th क्लास, तुम लोग सब मेरे से उस वक्त, आज के समय में तुम लोग मेरे से सीनियर हो, मतलब तुम लोग अब कॉलेज में हो, मैं उस वक्त 12th में था, तब मैं स्पीक मेके की मीटिंग में जाता था। और स्पीक मेके के कुछ पटना में बहुत ज़बरदस्त आयोजन हुए थे, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान से नूरजहां आई थी, हाँ, और बहुत सारे सिंगर्स आए थे पटना में। और वो लगभग 3 दिनों का आयोजन हुआ, विरासत। और 3 दिनों में उसमें रात में पूरी रात का संगीत आयोजन होता था, मतलब होल नाइट म्यूजिक। और सारी रात पटना के जो संगीत प्रेमी थे वो उस संगीत को सुनने के लिए वहाँ पर DPS पटना में वो आयोजन होता था। और भोर में 4-5 बजे वो आयोजन समाप्ति होती थी और पूरी रात, और कई स्कूल के बच्चे जो थे वो सब स्कूल में ही रह रहे थे। तो वो विरासत उस प्रोग्राम के मॉडल का नाम है। पटना में 2-3 बार हुआ है, दिल्ली में कई बार हुआ है, और कई शहरों में, बैंगलोर वगैरह, बॉम्बे, हर जगह होता है। और मेरी इच्छा थी कि विरासत में कराऊं। एक बार तो मैंने विरासत के लिए प्लानिंग किया कि राजगीर में कराऊं विरासत, और स्टूडेंट्स को राजगीर लेके जाऊं और वहीं पे सब क्लासिकल म्यूज़िक के लोगों को बुलवाऊं और वो संगीत का, योग का और आर्ट का, हैंडमेड जो कला होती है, जो पॉटरी होती है, जो तरह तरह के मिट्टी से जो आर्ट बनाए जाते हैं या पेंटिंग्स बनाई जाती है, वो सारी चीज़ों का एक संगम होता है उसमें। वो एक फोक संगीत, म्यूजिक, योग, सब चीज़ों का संगम होता है और वो अपने आप में बड़ा अनूठा आयोजन होता है। तो मेरी इच्छा है, मनीष जी जा चुके हैं, लेकिन हम लोग जल्द प्लानिंग करेंगे कि विरासत का आयोजन करें। और मैं चाह रहा था कि उसको राजगीर जैसे एक बगल में छोटा सा हिल स्टेशन है और वो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक हिल स्टेशन है और बहुत ही रमणीक स्थल है, तो वहाँ अगर इसका आयोजन करेंगे तो उसकी अलग वो होगी। तो इस तरह का स्पीक मेके के बारे में तुम लोग को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और तुम में से कोई छात्र जो है अगर स्पीक मेके का वॉलंटियर बनना चाहे तो वो बन सकता है। स्पीक मेके वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कोई वॉलंटियर से ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई चार्ज लेते हो, कुछ भी लेते हो। और यहीं पर स्पीक मेके की मीटिंग हो जाया करेगी, तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, फिर अलग अलग कॉलेजेस में स्पीक मेके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने पे में तुम लोग कोऑपरेट करो, ऐसा मेरी इच्छा है। जैसा ये काम मैं खुद भी कर चुका हूँ कि स्पीक मेके में वॉलंटियर के रूप में छात्र जीवन में मैंने कई कॉलेजेस में इवेंट्स करवाए, वडाली बंधु वगैरह आए थे, कई सारा, और वो बड़ा सुंदर आयोजन होता था और स्टूडेंट्स बहुत इन्जॉय। और अभी स्पीक मेके के साथ मिल करके तुम्हारे टेस्ट का एक आयोजन, तुम लोगों ने वो सब गाना सुना होगा ना, कव्वाली, कुन फाया कुन, हाँ, तो नियाजी बंधु हैं जो कि तुम लोग जानते हो कव्वाली में बहुत पॉपुलर है। तुम लोग ने कोक स्टूडियो वगैरह सुनते हो, कोक स्टूडियो, तो कोक स्टूडियो पे उनके कई सारे कव्वाली हैं और कव्वाली पर नियाजी बंधु हैं, नियाजी ब्रदर्स कहते हैं, उनका प्रोग्राम मुझे लगता है कि 21 से 23 के बीच का डेट होगा फरवरी का। तो तुम लोग को उसका अवसर मिलेगा, तुम लोग सब उसको भी एंजॉय करोगे, तुम लोग इस मैसेज को अपने बाकी फ्रेंड्स तक पहुंचा दोगे और हम लोग पुनः गुरु जी को थैंक यू, बहुत धन्यवाद। Thank you so much.